dead. According to his post-mortem, he had 26 wounds on his body, of which 8 to 10 sharp cuts were on his neck. This was murder. And let's make no bones about it, the government and the police were complicit by their inaction. The government and police of Rajasthan. This man was butchered despite the fact that he went to the police saying, I am a marked man. He told the police, they are coming for me because of an online post. Help me. But what did the police do? Believe it or not, they actually got Kanhaiya to sign an agreement with the very people who were threatening him. As a result, 2 weeks later, he was left riddled with 26 stab wounds, 10 on his neck alone. Let's first take a look at what Kanhaiya said in a written complaint. He wrote, my children posted something accidentally from my mobile phone while playing a video game. 2 days later, 2 men came to my shop, asked for my phone on the pretext of wanting to make a call. They then told me an objectionable post about the Prophet has been made by you. When I pleaded ignorance, they deleted the post and left. On July 11, I was called by the Dhana Mandi police station and was told that a complaint had been registered against me. When I went to the police station, I realized my own neighbor, Nazim, had registered a complaint against me. Nazim said this was done under pressure from his community. But after that, Nazim and 5 people started wrecking my house. They didn't let me open my shop. Day and night, 5 people circled my shop. And they are now planning to murder me as soon as I reopen. All of this was said by Kanhaiya. But the police did nothing. Pardon me, anyone in their right mind would have provided him security, would have arrested the people who were threatening him. And now that Kanhaiya is dead, can the government shirk responsibility by making a token suspension of 1 policeman? Was it carelessness or collusion that killed Kanhaiya? And was it appeasement that emboldened radicals to a point where they didn't even think twice before butchering Kanhaiya and actually boast about it? वो कह रहे मेरे एक क्या व्हाट्सएप हो गया, मेरे को पता नहीं, किसी बच्चे ने करा, मेरे को पता नहीं, पुलिस वाले से भी ऐसे ही बोला, तो उन्होंने थोड़ा ध्यान क्या पता लगाया कि नहीं लगाया वो समझ में नहीं आ रहा है। घर पे आते मेरे को नहीं बताते, एक बार बीच में आए तो कह रहे थे खोली दुकान तो वापिस गए, जो शुक्रवार को कह रहे कोई मुसलमान आके धमकी दे के गए, एक इंसान कोई आया था। क्या बोल के गए? मार दूंगा ऐसे कह रहा था। सर वो खाली एक फोटो था जो गलती से मेरे पापा के हाथ से शेयर हो गया था। सामने दुकान वाला था, वो 2 महीने पहले दुकान खाली करके गया था, उसने खाली जगह 100 मुस्लिम को इकट्ठा किया और केस कर दिया। पर हमने भी फिर से केस किया था और मैटर वहाँ पे क्लोज हो गया था। उसके बाद इतने दिनों से ये खाली एक हस्बैंड और एक वाइफ मतलब धमकी देने आते थे, 2 दिन छुट के 1 दिन। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Shazia Almin continues with us. We are joined by Feroz Bakht Ahmed, former Chancellor of Man U University. We have Zubair Memon also continuing with us. But my first question is to Yashveer Shura Junjuna, who is the Vice President of the Indian Youth Congress in Rajasthan. Yashveer ji, Kanhaiya ji की फैमिली कह रही है कि उनके मौत के जिम्मेदार आपकी पार्टी है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। दूसरा, जो कल उदयपुर में घटना घटी है उससे सभी बहुत दुखी हैं और इस तरह की हिंसक घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं समझता हूं कि कल पूरे देश ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने और सभी लीडर्स ने अपने अपने तरीके से। सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यशवीर जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि आपकी पुलिस और आपकी सरकार की कोताही की वजह से आज एक आदमी की मौत हो गई है, उसकी हत्या हुई है। सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके आपको लगता है कि उसकी भरपाई हो गई है? एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गलती की वजह से ये हत्या हुई है। देखो, जो मेरी जानकारी में जो बात आई है वो ये है कि भाई इनके बीच में कुछ बात हुई थी जिसको लेकर दोनों पक्षों ने बैठ के आपस में राजीनामा इनका हो गया था। इनका राजीनामा पुलिस ने कराया सर।
इन्होंने कोई अपनी मर्जी से नहीं की। ये आदमी कह रहा है कि मेरे को दुकान खोलते ही मारने की धमकी दी जा रही है, पुलिस ने बुला के राजीनामा करवाया। देखो, जो मेरी जानकारी में जो बात आई है वही मैं बता रहा हूँ कि भाई इनकी आपस में बैठ के बात हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। और फिर भी सर, आपस में बैठ के बात हुई नहीं थी, आपस में बैठ करके बात करवाई पुलिस ने। जिस पुलिस का काम था सुरक्षा देना, उन्होंने सुलह करवा दी। वो क्या करते, वो पुलिस के पास सुरक्षा मांगने गए थे, आपने सुलह करवा दी। और आपको पता है 15 तारीख को ये सुलह की चिट्ठी लिखवाई गई, 17 तारीख को उस आदमी ने वीडियो बनाया, कहा कि मैं ये उसका कत्ल करूंगा और जिस दिन कत्ल करूंगा उस दिन ये वीडियो वायरल करूंगा। सुलह के 2 दिन बाद हत्या की साजिश रची गई। पुलिस क्या कर रही थी? उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं दी? उन्होंने 7 लोगों का नाम दिया जो उनके दुकान के चक्कर लगा रहे थे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जो लोग थ्रेटन करते हैं उनके साथ सुलह कौन कराता है? जैसे ही सरकार के संज्ञान में ये बात आई, सरकार पूरी एक्शन मोड में आ गई। सर, आपके संज्ञान में हत्या के बाद आई बात, हत्या के बाद आप संज्ञान का क्या कर लेंगे? उसमें जो भी लोगों की लापरवाही सामने आएगी उनके सरकार। आपने एक एएसआई को सस्पेंड किया है सर, आपने एक एएसआई को सस्पेंड किया है। क्या आपको लगता है फिरोज बख्त अहमद दैट विदाउट द एक्टिव पेट्रनेज दिस पुलिसमैन वुड हैव एक्टेड इफ ही न्यू दैट ही वुड बी पनिश्ड for behaving like this, or the policeman knew that he had to function in this fashion because that is the policy? जिसकी भी लापरवाही सामने सरकार सर, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। फिरोज बख्त अहमद। हाँ, एब्सोल्युटली Padmaja, this ghastly, gory and grisly murder, it is not a mere murder, as this gentleman was saying that there were some differences and these differences were settled, blah, blah, blah. This seems to be a conspiracy not only against, this individual, that is Kanhaiya Lal. This seems to be a conspiracy against the nation. The way, it's horrendous, it's horrific, it's heinous the way it was, done. And, wholly and solely, I consider the Chief Minister, the system in Rajasthan responsible for this. And if Sonia Gandhi ji, if she is tuned to this debate, I would humbly request her to actually, sack this man, that is the present Chief Minister, Mr. Ashok Gehlot, right? And he has no right. And the way he was, casting aspersions against Prime Minister Modi, I think he is totally an incapacitated person, and some people in his party also objected to his presence. So ultimately what I see in the days to come, Padmaja, is, though this is not my beat, but in the days to come, he might go. Whether his boss, Sonia, removes him, or maybe in the next election, he won't be the CM. And last word. Now, I also request, people from my community, the way they came for akhlaq, they should also come for Kanhaiya, because the situation is very, very grim. It is not good. And we are all Indians, and as far as Muslims are concerned, let me tell you, Muslims are nationalistic, they are patriotic, they love their nation, but because of some people who aggravate passions in them, like the Madanis, the Owaisis, Tawqir Raza Khans, Muslims should come out of their clutches, right? All these things happen because Muslims are incited, they are provoked, and these are young people. Yes, this is very unfortunate. It is happening because of active provocation and appeasement that brings things to such a point. Zubair Memon. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस डिबेट पर बुलाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड मिलेंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं 2 ही पॉइंट्स रखूंगा। पॉइंट नंबर 1 कि जो उदयपुर में घटना हुई है वो निंदनीय है और बिल्कुल ही फेरोशियस है। हमको इस सब भारतीयों का इसका खंडन करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। अभी हमारे साथी जो मेरे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को या उनकी कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको रोड पे आके या खुल के कहना चाहिए कि जिस तरीके से अखलाक के लिए आए थे उसी तरीके से लिए इंसाफी के लिए भी आए, जिनको कल मार दिया गया उदयपुर में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है। टाइम्स नाउ ने
एक लिंचिंग, एक मर्डर को 2 दिन से डिबेट कर रहे हैं। ये और भी अच्छा होता जब पहली 2014 में मोहसिन शेख पूना में हत्या की गई, मॉब लिंचिंग, उसकी दाढ़ी टोपी देख के ये अखलाक को मार दिया गया। अगर उसके लिए भी लगातार ऐसे 3-4 आपको देखना चाहिए था सर, तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए था, हमने उतना ही किया था। सिर्फ 2 मिनट, भले से ही वो पहलू खान हो या अखलाक हो, 2 मिनट मुझे सब पे बात की गई है। इसको प्लीज वॉट अबाउटरी मत कीजिए मैडम, 2 मिनट दीजिए फिर आप बात करिएगा मैडम। हाँ, तो आप ऐसे सवाल मत पूछिए ना कि अच्छा होता, मैं आपको बता रही हूँ हुआ है। मैं सवाल अब आप मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ मैडम मैं, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कभी भी मुस्लिम समाज ये 2 कातिलों के लिए रोड पे नहीं उतरेगा। हम जो मजलूम के ऊपर हत्या की गई है, हम सिर्फ उसके साथ खड़े हैं। ये 2 कातिलों के लिए भगवा 10 दिन सालों भर बहस हुई है। नहीं पद्मा जी, नहीं पद्मजा नहीं, मैं इस इंसान को झूठ नहीं बोलने दूंगी। सॉरी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जुबैर इंसान ये बोलेगा, ये झूठा आदमी जो कह रहा है कि बहस नहीं हुई, इनकी बातें को सुनकर क्या लगेगा लोगों को? आपके चैनल के माध्यम से लोगों को लगेगा कि अखलाक और पहलू और जुनैद की मौत के बाद बहस नहीं हुई, ये लगेगा ना? तो ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ना 1 दिन ना 2 दिन बल्कि सालों, महीनों, हफ्तों, सुबह से शाम तक, रात तक बहस हुई है। तो आप इस इंसान को झूठ बोलने दे रही है टीवी पर और नफरत फैलाने दे रही है। बजाय ये कि ये इंसान यहाँ पे कहता है कि मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हैं। ये जुबैर इंसान ने झूठ बोला है आपके सामने, और मैं सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ, सब दर्शक जानते हैं कि अखलाक की जब मौत हुई, हम सब लोग ने कहा कि कितना गलत हुआ है। हम सब लोगों ने कहा, बढ़ चढ़ कर कहा। और इनको ये जुबैर मेमन जी झूठ ना बोलिए और ये बताइए, पहलू खान जो अलवर में जिसकी लिंचिंग हुई थी, आपको पता है उसकी टेस्टिमनी में है कि उसको मारा गया है। और मैं बताऊं किसकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, उसके तहत सुनवाई जब हुई है तो जो 6 लोगों का नाम मरते मरते पहलू खान ने जी, मुसलमान पहलू ने मरते मरते जो नाम लिए थे ना 6 लोगों के, बरी कर दिया राजस्थान की सरकार ने। जो आप कह रहे थे ना मेजॉरिटेरियन जी, इसी का आ रहा था, जो माइनॉरिटी की हक तरफ बातों करने वाली कांग्रेस पार्टी ने ना, पहलू के मारने वालों को, कातिलों को जुबैर मेमन को जवाब देने दीजिए, जुबैर मेमन को जवाब देने दीजिए। आप बाकी सब छोड़िए। आई डोंट नो अगर आपने नाम सुना हो, आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं जुबैर साहब, जस्ट अ सेकंड, आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है। क्या आपको पता है कि इस मर्डर से पहले देयर वर ओपन cries for murder being given in Rajasthan itself, in Bundi there is a Maulana Mufti Nadeem, उन्होंने ओपनली बोला कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो प्रॉफिट के खिलाफ बोलेगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उसकी जबान काट ली जाएगी। आज तक राजस्थान की सरकार ने उनको अरेस्ट नहीं किया है मिस्टर मेमन, आज तक अरेस्ट नहीं किया है। जो आदमी वायलेंस को प्रवोक कर रहा था, जिसके चलते ये सब हुआ है, वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। मेमन साहब, लेट मिस्टर मेमन टॉक। 2 लोग एक टाइम पे बात कर रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मैडम। जी बोलिए मिस्टर मेमन। चुप कराइए, की आवाज आ रही है जी। आप कह रहे थे कि कोई राजस्थान में कोई उलमा ने, मौलाना ने कुछ बात की है, उस पर राजस्थान सरकार ने कोई भी सुनवाई नहीं की है या उनको अरेस्ट नहीं किया है, तो ये राजस्थान सरकार को पूछिए। मैं राजस्थान सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किसी भी गलत तरीके के स्टेटमेंट देने वाले के खिलाफ करनी चाहिए। और जो शाजिया इल्मिया आपके पहले जो बात हो रही थी, जो मेरी बात काट दी गई, उसको मैं पूरी कर देता हूं कि मोहसिन शेख के लिए कभी कोई डिबेट हुई नहीं। सेकेंड थिंग कि अगर कोई डिबेट उसी वक्त हो जाती तो ये सब चीजें रुक जाती। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज किसी भी हत्यारे के साथ खड़ा नहीं रहेगा। जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के लिए कोर्ट में पुलिसों को मारा पीटा गया, भगवा रैली निकाली गई, इस तरीके की कोई रैली इन 2 हत्यारों के साथ नहीं निकाली जाएगी। और पूरे देश के मुसलमान लीडरान, पूरे देश के मुसलमान उलमा,
पूरे देश के मुसलमान मौलाना, बड़े बड़े एक्टिव सभी ने इसका खंडन किया है, इसका विरोध किया है और किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये बात सही नहीं है सर। There are hundreds of people out there, unnamed, vicious, vile people who are still trying to justify it, saying that he said something insulting. Please do not try and whitewash that. Point number one. Point number two. At the juncture when this violence was being asked for, people like you were sitting and justifying and saying क्योंकि नुपुर शर्मा ने बोला है इसलिए इस तरीके से violent calls दी जा रही हैं. That is as facetious as saying कि किसी ने एक भद्दी जोक क्रैक की है शिवलिंग के ऊपर तो लोग उसके खिलाफ वायलेंस हो रहे हैं. इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है. No violence can be condoned or cause of violence saying oh they were angry because they were provoked. You did not speak up when those calls were being given. So today when that call has been converted into action, you cannot brush off your responsibility. Thanks very much, all gentlemen, and Shazia Almi for joining me. Tomorrow the Chief Minister is going to visit Udaipur. We'll keep a close watch on what happens. Stay tuned.